Hello students, I am Dr.Amrisha Deshmukh again with you. I am guest faculty B.Ed Department RDVV Jabalpur. In last class, we saw what is programmed instruction or programmed learning. Today we will be looking into types of programmed instruction. Right? Let's go ahead. As I said, we will be looking the types of programming or programmed instruction. Mainly there are, which you have to study in B.Ed course, there are three main types of programming, or you can say programmed instruction. First, linear or extrinsic programming. Second, branching or intrinsic programming. And third, mathematics. Now we come to first one, the linear or extrinsic programming. Linear programming, the promoter of this programming was B.F. Skinner. Who brought this concept of linear programming? B.F. Skinner. It is also called single track programming. As you can see in the figure, all the small steps of the content are arranged in a single line. That's why it is called single track program. I'll explain this diagram to you. Now in the diagram you can see there are first, second, third, fourth, fifth and sixth frames. Frames can be as per the programmer. It is not fixed that there are 6 frames or 5 frames. As per the program need, the frames are made. जितनी प्रोग्रामर को आवश्यकता होती है उतने फ्रेम वो बनाता है. सो जैसे कि मैंने बोला किसी भी टॉपिक है, कंटेंट को यहाँ पे अगेन व्हाट program instruction is, content is divided into small steps which are arranged in logical order from easy to difficult pattern. So the total contents are divided into small steps, और इन small steps को जो छोटे छोटे पद बनाए जाते हैं, कंटेंट को 4 से 5 लाइन में डिवाइड करके उनको फ्रेम कहा जाता है. तो पहला फ्रेम हर स्टूडेंट आएगा, वो फर्स्ट फ्रेम में जो 4 से 5 लाइन का कंटेंट दिया है उसको पढ़ेगा एंड उसके बेसिस पे जो भी नीचे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेगा. जब वो पूरी तरीके से फर्स्ट फ्रेम में दिए गए क्वेश्चंस को सही सही सॉल्व कर लेगा तभी उसको सेकंड फ्रेम में जाने का मौका मिलेगा. जब तक वो फर्स्ट फ्रेम को पूर्णतः सॉल्व करने में सफल नहीं होता, ही विल नॉट बी अलाउड टू गो टू सेकंड फ्रेम एंड सो ऑन. This will keep going until he reaches the last frame. Okay. Now, as the student enters, this is first frame. Below the first frame, you can see the box of entry behavior. Why this is called entry behavior? Because before the first frame, the content is new to the student. He has no idea or little idea about the content. So his entry behavior is different. He has just no idea. After going through or walking through the different frames, student reaches to terminal behavior. After going through all the frames and solving the questions given, he reaches the last frame and then we can say कि he has reached the terminal behavior. What the programmer wanted to student to get mastery on, or what the programmer decided the objective of the content to be imparted, that thing is achieved when student successfully reach the last frame. Then it is called he has attained the terminal behavior. Right? This thing is clear. So अब हम we go further. इतना आपने समझ लिया. हर छोटे छोटे फ्रेम में दिए गए कंटेंट को पढ़ेगा, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेगा और आगे बढ़ता जाएगा. जब तक एक फ्रेम में दिए गए क्वेश्चंस को सही सही रिस्पॉन्स नहीं करेगा, he will not be allowed to go to the second frame. Now one more thing I want to bring in your notice that this program learning is systematic and linear. As you can see from the figure, this is linear and systematic. Now learner has to proceed through the same frame and in the same order. All the learners, जितने भी learners हैं, they all have
they will have their individual program with them, but they have to go through the same frame. There is no option given to different students to choose as per their own capability और देयर ओन इंटरेस्ट और एज पर देयर ओन रिस्पॉन्स. हर स्टूडेंट जो भी इस लीनियर प्रोग्रामिंग को लेता है ही हैज़ टू गो थ्रू द सेम पैटर्न. ऑलराइट. नाउ इन लीनियर प्रोग्रामिंग लर्नर रिस्पॉन्स आर कंट्रोल एक्सटर्नली. अब हमने एक चीज़ और बोली कि दिस प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग. एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग हम कह सकते हैं बाह्य प्रोग्रामिंग. क्यों इसको एक्सट्रिंसिक कहा जाता है? बिकॉज द लर्नर्स रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड एक्सटर्नली बाय द प्रोग्रामर सिटिंग एट द डिस्टेंस प्लेस. जो भी टीचर या प्रोग्रामर यह प्रोग्राम बनाता है वह he sits at the distance place when the learner goes through the different frames. जहाँ लर्नर ने सही रिस्पॉन्स दिया वो टीचर उनको रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन देता है कि यस योर आंसर इज़ राइट. एंड व्हेन द स्टूडेंट डज इट रॉन्ग, गलती करता है, तो वहाँ पे एक्सट्रिंसिकली टीचर उनको बताता है कि यू आर डूइंग इट रॉन्ग. आर यू गेटिंग? तो यहाँ स्टूडेंट्स की त्रुटियाँ बताने के लिए टीचर सामने बैठ के उनकी अभिक्रियाओं को कंट्रोल करता है. इसलिए कहा जाता है कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग है. द रोल ऑफ टीचर इज़ टू जस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन वेदर यू आर राइट और रॉन्ग. ठीक है. Hence linear programming is also called extrinsic programming. ओके. अभी आप जब ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे जो सेकंड टाइप है, तब आप उसको पढ़ के आपको और अच्छे से डिफरेंस समझ में आएगा इन दोनों में कि क्यों ये लीनियर है और क्यों वो ब्रांचिंग है. दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू? ओके. नाउ हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग के. इसके प्रिंसिपल्स हैं. प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स. ऑब्वियसली द कंटेंट इज प्रेजेंटेड इनटू स्मॉल स्टेप्स. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग. स्टूडेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड तो करना ही है, रिस्पॉन्ड करना है यानी अनुक्रिया करना है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्टिव रिस्पॉन्डिंग. एक चीज़ और ध्यान से यहाँ पे सुनिए, लिसन केयरफुली. हेयर मेनली स्टूडेंट हैज़ टू कंस्ट्रक्ट द आंसर. स्टूडेंट हैज़ टू कंस्ट्रक्ट द आंसर. उसको अपना आंसर की रचना करनी पड़ती है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सुनिए. क्यों कहा जाता है उसको कंस्ट्रक्ट करना आंसर? क्योंकि यहाँ पे यूजुअली या तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए के रूप में क्वेश्चन होते हैं या वन वर्ड आंसर होते हैं. तो उसको अपना आंसर लिखना पड़ता है. उसके पास चॉइस नहीं रहती कि MCQ है मल्टीपल की उसमें से कोई एक चुन लिया. उसको अपना आंसर का खुद लिखना पड़ता है. इसलिए इसको कहा जाता है ही कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन आंसर. और वो सही है या गलत है वो प्रोग्रामर उसको बताता है. नाउ थर्ड इज़ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम एरर. यहाँ एरर होने के चांसेस कम होते हैं. एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ रिजल्ट. फटाफट उसको अपने रिजल्ट्स पता चलते हैं. तो रेनफोर्समेंट तो मिलता ही है. सही अनुक्रिया किया उसको रेनफोर्समेंट मिला कि यस यू आर डूइंग इट राइट. तो वो सेम अनुक्रिया फिर से करने के लिए तत्पर रहता है. इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी क्रिया कर कर के ही सीखता है. लीनियर प्रोग्रामिंग हो या कोई भी प्रोग्रामिंग हो, वो अपनी ही लर्न्स थ्रू responding. When he responds correctly, he is being reinforced and he tend to repeat the same response. तो वो जब सही क्रिया करता है उसको पुनर्बलन मिलता है. वो पुनः सही अभिक्रिया करने के लिए तत्पर होता है. इसलिए कहा जाता है कि ये रिजल्ट्स इसमें तुरंत मिलते हैं और स्टूडेंट अनुक्रिया द्वारा सीखता है. नाउ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग की? कि लीनियर प्रोग्रामिंग है सिंगल ट्रैक. जो आपको पता है कि ये सिंगल ट्रैक प्रोग्रामिंग है या स्ट्रेट लाइन प्रोग्रामिंग है. इसमें जो कंटेंट है उसको सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स में, जिसको फ्रेम कहा जाता है, 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम, तो जो टोटल कंटेंट है उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है. हर जो भाग है या पद है उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेम. नाउ थर्ड, एवरी लर्नर फॉलोज द सेम पाथ. जो भी लर्नर है उनको सेम पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है. देन फोर्थ, द कंटेंट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल यूनिट्स. जो हम पढ़ चुके हैं.
और ये जो रहता है रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 1 वर्ड टू एज मैनी एज 40 to 50 वर्ड्स का फ्रेम, उससे ज़्यादा का फ्रेम नहीं रहता है, क्योंकि मैंने बोला बहुत छोटे पार्ट्स में कंटेंट इज डिवाइडेड। इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग द लर्नर इज गिवन अ स्मॉल प्रोग्राम एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो इन ईच फ्रेम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन. What I am saying since starting, very small information is given at a time. The sequence of steps remains unchanged. Yes, you cannot change the steps of sequence of steps. Now the seventh, the learner is expected to compose his own answer. He has to construct his own answer. जो मैंने बताया उसको आंसर खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि वन वर्ड आंसर होता है या फिल इन द बैंक्स, तो he has to compose his answer. कोई चॉइस नहीं है कि गिवन चॉइस में से उसको चूज़ करना है. The learner is expected to respond actively to each step. He has to respond, that you all know. The response of the learner are immediately reinforcement. Every response of the learner is immediately reinforced कि yes, this is right or wrong. तो immediately उसको reinforcement मिलता है कि whether it is right or wrong. Linear programming provide for self pacing. Yes, अपनी स्पीड से स्टूडेंट आगे बढ़ता है. दैन लीनियर प्रोग्रामिंग मूव स्लोली बट स्टेडली. इसमें बहुत धीरे धीरे, क्योंकि बहुत स्मॉल इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम दी जाती है, इसलिए कहा जाता है कि बहुत स्लो स्पीड से स्टूडेंट आगे बढ़ता है, बट स्टेडली इसमें थॉरो नॉलेज लेता जाता है. ईच ऑफ द यूनिट कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रेम. ठीक है, हर यूनिट से एक फ्रेम बनता है. इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग द प्रोग्रामर कंट्रोल्स द रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर. प्रोग्रामर कंट्रोल्स द रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर. जो लर्नर रिस्पॉन्स दे रहा है उसका कंट्रोलर प्रोग्राम के हाथों में है, जो कि कुछ दूरी पे बैठा रहता है और उसके रिस्पॉन्स को स्टूडेंट जो अनुक्रिया कर रहे हैं उनको कंट्रोल करता है. देन इन दिस द लर्नर लर्न्स बाय अवॉइडिंग द एरर. इसमें लर्नर कैसे सीखता है? बाय अवॉइडिंग द एरर. वो कोशिश करता है कि उसके द्वारा एरर ना हो, वो सही आंसर दे. ही अवॉइड्स द एरर. बट यहाँ पे डायग्नोसिस नहीं होता है एंड रेमेडियल टीचिंग की कोई अरेंजमेंट नहीं है. यहाँ डायग्नोसिस नहीं होता है कि तुम गलती क्यों कर रहे हो, बस तुम गलती कर रहे हो ये बता दिया जाता है. क्यों कर रहे हो ये नहीं बताया जाता. अगर वो गलती कर रहा है और सही आंसर नहीं दे रहा तो बोला जाता है फिर से फ्रेम पढ़ो. पर कोई रेमेडियल उपचारिक तक शिक्षण नहीं दिया जाता है कि उसको नई विधि से पढ़ाया जाए. तुम सेम फ्रेम को फिर से पढ़ लो. तुम्हें कोई नए मैटर या नए तरीके से समझाया नहीं जाता है, इसलिए कहा जाता है लर्न कि ही लर्न्स बाय अवॉइडिंग द एरर. इसलिए वो कोशिश करता है कि एरर ना हो. ठीक है, उसको सेम फ्रेम को ही पढ़ना पड़ता. अलग से कोई रेमेडियल उपचारात्मक फ्रेम उसके सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता है उसकी एरर को सुधारने के लिए. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस. अब हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन क्या है. इन लीनियर प्रोग्रामिंग द लर्निंग प्रोसेस बिकम्स क्वाइट डल. वाई इट इज़ वेरी डल? क्योंकि बहुत स्मॉल स्टेप, स्मॉल इन्फॉर्मेशन के थ्रू स्टूडेंट आगे बढ़ता है. ठीक है. रिस्पॉन्डिंग इज़ क्वाइट मैकेनिकल एंड रिस्ट्रिक्टिव. ऑब्वियसली वेरी बहुत मैकेनिकल हो जाती हैं इसमें चीज़ें. और लर्निंग प्रोसेस इज़ क्वाइट स्लो. The use of learning linear programming is limited to some subject and topics. It is limited to some subjects. All the topics and all the subjects cannot be taught through linear programming. Then third, linear programming crams the imagination of the learner and initiative for creative, integrative and judgmental learning. यहाँ पे students की imagination power को, उसकी creativity को, उसकी integrative power को मौका नहीं मिलता डेवलप होने का. ठीक है, इसमें कुछ क्रिएटिविटी लर्नर नहीं सीख पाता है. लीनियर प्रोग्रामिंग एनकरेजेस गैसिंग. गैस करता है कि इसका ये आंसर हो सकता है, तो इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन गैस की जो उसने पढ़ा है उसके बेसिस पे वो गैस करे, पर उसका एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन वाली पार्ट जो है वो हिंडर हो जाता है. Then fifth is linear programming does not develop the discriminating power of the student. Why discriminating power develop नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ कुछ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में विभेद कर पाना. जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, 4 आंसर दिए हैं तो स्टूडेंट की डिस्क्रिमिनेशन पावर डेवलप होती है कि इन चारों में विभेद करो कौन सा सही है. हर एक को लो, हर एक के प्रोस एंड कॉन्स देखो और डिसाइड करो कि क्या सही हो सकता है. तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर डेवलप
डेवलप होती है। यहाँ स्टूडेंट अपना आंसर खुद कंपोज करता है तो डिस्क्रिमिनेशन पावर डेवलप नहीं होती है। तो ये आज हमने आपको बताई लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। थैंक यू सो मच।